Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 11, Journey to the Top. Determination. So all of us wish to achieve many things in life, right? But this is possible only if we have a strong willpower and determination. हम सबकी इच्छा होती है ना कि हमें सक्सेस मिले, हम जो विश करते हैं वो सारी चीज़ें अचीव करें लाइफ में. लेकिन अगर ये पॉसिबल करना है तो हमारे अंदर वो एक गोल होना चाहिए कि मुझे उस चीज़ को अचीव करना है. जो भी आपकी विश हो, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग विथ पावर एंड determination. So, determination is the ability to remain focused towards our goals despite all difficulties. आपका जो जुनून है वो हमेशा अंदर रहना चाहिए, या चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आए या कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आए, तो आपको आपके गोल के लिए बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा. अगर आपका फोकस हट गया देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू achieve your success. So read the inspiring story of Arunima Sinha, who showed real courage and determination in the darkest phase of her life. Phase यानी कि period. Phase यानी कि period. So this is a very inspiring story of Arunima Sinha, who showed real courage and determination in the darkest period of her life. So you can see the picture here. This is a picture of Arunima Sinha. So let's start. Arunima Sinha, a former यानी कि previous national level volleyball player from Uttar Pradesh, lost her leg in an ugly accident in 2011. ये जो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर है, कहाँ से है? उत्तर प्रदेश. उसने अपना एक लेग खो दिया एक्सीडेंट में. शी लॉस्ट हर लेग. सम burglars demanded her gold chain and on her refusal pushed her out of moving train. What happened? There was an incident happened with her. ट्रेन में उसके साथ क्या हुआ? कुछ लोगों ने उसकी गोल्ड चेन मांगने की कोशिश किया एंड शी रिफ्यूज. शी सेड नो, आई वोंट बी गिविंग इट. तो उन्होंने उसे चलती ट्रेन से क्या किया? ढकेल दिया. इसके वजह से उसने अपना जो एक पैर है वो खो दिया ट्रेन एक्सीडेंट. शी वॉज हिट बाय अ पासिंग ट्रेन एंड सफर्ड मैनी इंजरीज. वो एक पासिंग ट्रेन से टकराई और उसे बहुत सारी इंजरीज को सफ़र करना पड़ा. इंजरीज, physical harm or damage. So this incident in 2011, which she described as the darkest hour, changed her life completely. ये जो उसके साथ हुआ था वो उसे बोलती है कि ये बहुत उसके लाइफ का एक काला चीज़ है. मतलब बोलते हैं ना डार्केस्ट, मतलब बहुत अंधेरा वाला टाइम था उसके लिए, जिसमें से उसको निकल आना बहुत डिफ़िकल्ट था. इट वॉज part of her life. After the train accident, doctors had to amputate यानी कि cut off a leg or body part by surgical operation. ये एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स had to cut her legs. उसके लेग को काटने की ज़रूरत थी ये एक्सीडेंट की वजह से. her leg below the knee, नी के नीचे का जितना पार्ट है उसका लेग का, they had to cut it. A rod was inserted यानी कि placed inside something else. So her leg to provide support and help her to walk. Rod insert किया गया, एक rod डाला गया so that it will give support and help to her to walk. When I was undergoing treatment at AIIMS, All India Institute of Medical Science, for 4 months I could not do anything on my own. What happened? She was doing her treatment where AIIMS, इसका फुल फॉर्म है All India Institute of Medical Science.
फॉर 4 months। कितने मंथ तक उसका ट्रीटमेंट चालू था? इट वॉज गोइंग ऑन फॉर 4 months एंड आई कुड नॉट डू एनीथिंग ऑन माई ओन। उसको खुद से कुछ भी कोई चीज़ें करना पॉसिबल नहीं था। बट वन डे आई डिसाइडेड टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, शी सेज। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसने डिसाइड किया कि मैं इसी हालत में, इसी कंडीशन में माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। दैट वॉज हर डिटर्मिनेशन। शी जॉइंड अ माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग कैंप इन उत्तरकाशी एंड गॉट ट्रेन्ड अंडर एस माउंटेनर। माउंट ट्रेनिंग यानी कि स्पोर्ट और एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स। माउंटेन ट्रेनिंग यानी कि एस, व्हाट इज एस? अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन सम फील्ड। Bachendri Pal, she went through a long mental and physical training course. She went through a long physical and mental training course. Sometimes she would become sad. कई बार वो sad हो जाती थी because she could not catch up with normal people. कई बार वो sad हो जाती थी because ट्रेनिंग में कैसे सिखाया जाता है कि माउंटेन्स कैसे चढ़ना है, what are the tactics, what are the tricks. So कई बार वो सैड हो जाती थी बिकॉज उसके साथ ही बहुत सारे नॉर्मल लोग थे जिनके पास अच्छे पैर थे, राइट? बट शी हैड मेट एन एक्सीडेंट, सो शी हैड लॉस्ट हर वन लेग. But sometimes she used to become sad because she was not having her own leg but a rod which used to support her to walk. But her strong determination kept her going. उसका जो strong determination, उसका जो जुनून था वो हमेशा उसके अंदर था. After a lot of hard work, training and 52 days of difficult climb from Kathmandu to the top of the peak, she fulfilled her dream. After कितना दिन का ट्रेनिंग था? 52 days. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था एंड इट वॉज अ 52 days ट्रेनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट क्लाइंब फ्रॉम काठमांडू टू द टॉप ऑफ द पीक. शी फुलफिल्ड हर ड्रीम. ऑन May 21, 2013 she reached the highest peak which was 8,848 meters above sea level. देखो कितना ऊपर है. उसका जो हाइट था इट वॉज 8,848 meters. So many times during her climb, her coach advised her to give up and go back due to bad weather conditions. कई बार उसने जब कोशिश करना चाहा तो उसका जो कोच था वो हमेशा उसे एडवाइस करते थे, हमेशा उसे सजेस्ट करते थे कि तुम रिटर्न चली जाओ घर पे क्योंकि वेदर जो है वो अच्छा क्लाइमेट नहीं है. बट अरुणिमा कंटिन्यूड हर जर्नी विथ पॉजिटिव थॉट्स एंड कंप्लीटेड हर डिटर्मिनेशन. वॉट हैपन स्टिल उसका कोच तक उसे एडवाइस करता था कि तुम्हें रिटर्न जाना होगा, क्लाइमेट अभी ठीक नहीं है ऊपर जाने के लिए. बट स्टिल वॉट डिड अरुणिमा का जो डिटर्मिनेशन था, उसका जो जुनून था, इट केप्ट हर पॉजिटिव थॉट्स. उसके जो पॉजिटिव थॉट्स थे उसके वजह से शी कंप्लीटेड. अरुणिमा सिन्हा इज़ एन इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन यानी कि अ क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स to all those who give up on their lives due to small problems. वो एक इंस्पिरेशन बन गई उसके ये गोल से, उसके ये डिटर्मिनेशन के वजह से. शी हैज़ बिकम एन इंस्पिरेशन टू उन लोगों के लिए जो लोग छोटे छोटे बातों से अपना जो स्मॉल गोल्स होते हैं, हु गिव अप ऑन देयर गोल्स. मतलब कई बार कुछ लोग होते हैं अपने गोल्स पे वो गिव अप कर देते कि दे थिंक दैट दे कैन नॉट डू इट एनी मोर. But today, Arunima Sinha is an inspiration for all those people. She has proved that a strong determination and willpower is far more important than a strong body. What she is saying कि उसने प्रूव किया है कि एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग जुनून अगर हमारे अंदर है, तो विल पावर अगर हमारे अंदर है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग बॉडी से. देखो उसके पास एक पैर नहीं था लेकिन बॉडी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था? उसका जो जुनून, उसका जो गोल, उसका विल पावर. दैट वाज मोर देन इम्पॉर्टेंट rather than other thing.
The 26-year-old Arunima Sinha changed her problem into an opportunity. उसने उसका जो प्रॉब्लम्स थे उसे किस में चेंज किया? उसने चेंज किया किस में? एक अपॉर्चुनिटी में, एक मौके में चेंज किया. एंड बिकेम द फर्स्ट वुमन amputee to climb Mount Everest. India is proud of this young and strong daughter, and today India is proud to have this young and strong daughter. So what is the reflections? Difficulties are part of life. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स, ये सारे हमारे एक पार्ट ऑफ लाइफ है. People with strong determination and willpower work hard and overcome their difficulties. People, लोग जो अपने डिटर्मिनेशन और अपने हार्ड काम से सारे डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर ले सकते हैं. Set small goals in life and work with full determination. आपको हमेशा आपकी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स को सेट करने हैं और पूरे जुनून के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपको उसके लिए काम करना होगा. टू अचीव देम. वंस यू अचीव योर सेट गोल, मूव अहेड इन लाइफ एंड सेट बिगर गोल्स. जैसे ही आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना स्टार्ट कर लेते हो, देन मूव अहेड, आगे बढ़ो और बड़े बड़े गोल्स को सेट करो.